Hi everyone, welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is the Sisraeli series that's going on जहाँ पे आपकी psychology की book that's been written by Sondra K. Sisraeli and other authors. We are covering all the 15 chapters of that book. So all those who are following this series from the beginning, kudos to you for being consistent, for working towards your goal. और जिनको इस सीरीज के बारे में आज ही पता चला है थ्रू दिस वीडियो, यू have not missed out on a lot of things. We have covered the first 7 chapters of this book. तो अगर आपको वो previous chapters cover करने along with me at Mind Review, then what you can do is you can go to the description box. वहाँ पे सिसरेली सीरीज की प्लेलिस्ट की मैंने लिंक प्रोवाइड की हुई है. सिंपली ओपन दैट लिंक एंड यू विल गेट ऑल द प्रीवियस वीडियोस अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर. क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि रिसोर्सेज तो है लेकिन वो सीक्वेंस में अरेंज नहीं है, तो कभी पार्ट 1 कभी पार्ट 2, दे जस्ट वेस्ट देयर टाइम ऑन finding these videos. So what I have done, I have arranged all of them sequentially for you. So all you need to do is open the link and begin studying, right? So as you all know, हम लोग चैप्टर 8 कर रहे थे. बहुत सारी चीजें चैप्टर 8 में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड टुडे इज पार्ट 6 ऑफ दिस चैप्टर. तो आज की वीडियो में हम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट कंफर्ट. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. तो ये जो कॉन्टैक्ट कंफर्ट का एक्सपेरिमेंट था, इट वाज डन बाय दिस पर्सन नोन एज हैरी हार्लो. ओके, हैरी हार्लो ने ये एक्सपेरिमेंट किया था. नाम क्या है? कॉन्टैक्ट कंफर्ट. नाउ व्हाई डिड ही वांट टू डू दिस एक्सपेरिमेंट? ही एक्चुअली वांटेड टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ अटैचमेंट इन इन्फेंट्स. कि जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें क्या अटैचमेंट का कोई कॉन्सेप्ट होता है? आर दे हैविंग एनी इमोशनल बॉन्ड विद देयर caregiver or their mother, right? So for this, Harry Harlow used 8 babies who were infant rhesus monkeys, because of course ethically speaking Harlow could not use the human babies. He could not separate the human babies from their mothers, but in case of animals he could do that at that point of time. So जो rhesus monkey एक breed होती है monkeys की, उनके जो infants थे, he took 8 infant rhesus monkeys, 8 babies of that rhesus monkey, and separated those monkeys right at birth from their mother. Then he brought them to his experiment chamber, and what he did, उन्होंने वहाँ पे 2 surrogate mothers रख रखी थी. ठीक है, suppose this is the kind of chamber that is there inside a room. So this is a chamber. So there were 2 surrogate mothers over here. Here was the first surrogate mother and here was the second surrogate mother. और ये जो surrogate mothers थी, these were not monkeys. These were just made up of block woods. ठीक है, उनको monkey का shape देके एक block wood से ही बनाया गया था. जो आपकी लकड़ियाँ होती है, woods होती है, बस उस चीज से इनको shape देके बनाया गया था. So it was kind of a statue. Now one of these surrogate mothers was covered in soft and padded cloth. यानी कि वो block wood की बनी हुई थी और उनके ऊपर जो है soft कपड़ा और padded cloth जो है अच्छे से लगा दिया, right? And the second surrogate mother was made up of block wood and had a coverage of wire only. तो उनके ऊपर सिर्फ wires लगी हुई थी. There were no soft padding or there were no clothes over. There were only wires, right? So I hope you understand the basic tenet of how this experiment was set up. So Harry Harlow ने attachment study करने के लिए ये 2 setup किए. And then what he did, ये जो 8 rhesus monkeys, 8 infant rhesus monkeys को वो लेके आए थे, one by one they brought these monkeys into this room where these 2 surrogate mothers were there, and he left them ये देखने के लिए कि अब ये rhesus monkey किसके पास जाएगा. Will the rhesus infant go to that mother which is covered in soft padded cloth, or will the rhesus monkey go to that mother which has covering of wire. ओके, सो दे डिड मेनी मैनिपुलेशंस. कभी एक ट्रायल में क्या होता था कि जो मदर वायर से ही कवर्ड है उसके पास फीड करने का भी सोर्स होता था, यानी कि दैट मदर वुड आल्सो हैव सर्टेन फूड आइटम. सो ऐसा देख के तो लगेगा कि जो सॉफ्ट पैडिंग क्लॉथ है बट उसके पास नो फूड है. ठीक है, फूड नहीं है उसके पास, पर वायर वाली मदर के पास फूड है एंड शी कैन फीड ऑल्सो. सो प्रोबेबली द इन्फेंट rhesus monkey would go to the wire mother because the food is there and not to the soft padding cloth, है ना? ऐसा अपीयर होगा. बट द रिजल्ट्स वर वेरी वेरी ड्रास्टिक. रिजल्ट्स क्या कह रहे थे कि रिगार्डलेस ऑफ हु वाज फीडिंग,
all the infant monkeys, they spent more time with that mother which was covered in soft and which was covered in cloth. ठीक है, तो चाहे फीडिंग का मटेरियल वायर वाली मदर के पास हो या फीडिंग का मटेरियल सॉफ्ट पैडेड क्लॉथ कवर्ड मदर के पास हो, रिगार्डलेस ऑफ हु वाज फीडिंग, इन्फेंट का ध्यान ही नहीं था कि फीडिंग का सोर्स किसके पास है. द ओनली थिंग दे लुक्ड फॉर व्हाइल गोइंग टू सम सरोगेट मदर वाज कि कौन सी मदर सॉफ्ट और क्लॉथ टाइप सॉफ्ट क्लॉथ में कवर्ड है. सो दिस एक्चुअली शोज कि हमारे जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें भी टच का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ड्यूरिंग द अटैचमेंट प्रोसेस. बिकॉज वेन एवर सी देर इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट जिसको हम बेसिकली इमोशनल बॉन्डिंग ही कहते हैं. इफ यू सीन द previous part of this particular chapter, part 5, in which we talked about yesterday only, attachment के बारे में हमने बात की थी, तो जो कि इमोशनल बॉन्ड ही होता है. एंड दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट कंफर्ट बाय हैरी हार्लो एक्चुअली शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टच इन दैट प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट. क्योंकि अगर आप ये देखें कि इन्फेंट यहाँ पे ये फील कर रहा है क्योंकि देर इज समथिंग सॉफ्ट, देर इज समथिंग दैट इज कंफर्टेबल, अ क्लॉथ लाइक स्ट्रक्चर instead of a wire which is not comfortable at all, which is probably hurting the infant in return. So the infant is looking for something that is soft on their skin, that is having some kind of a material over it, so that the touch is correct. Okay, so therefore this experiment of Harry Harlow, what does it highlight? It highlights the importance of touch in the attachment process. ठीक है, तो ये है आपका कॉन्टैक्ट कंफर्ट का एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे एमसीक्यू एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि ये एक्सपेरिमेंट किया किसने था? हैरी हार्लो ने. कॉन्टैक्ट कंफर्ट इसका नाम था. किनको यूज किया? रीसस मंकीज. ओके, इन्फेंट रीसस मंकीज को. एंड व्हाट वाज द फाइंडिंग? द फाइंडिंग वाज कि चाहे कोई भी सरोगेट मदर फीड करी हो, द इन्फेंट वुड स्पेंड मोर टाइम विद दैट मदर विच इज कवर्ड इन सॉफ्ट पैडिंग एंड सम काइंड ऑफ क्लॉथ. और ये एक्सपेरिमेंट ओवरऑल हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ टच इन योर अटैचमेंट प्रोसेस. Okay, so this is one experiment that was to be discussed today. Another little experiment that I would like to discuss it with you. ऑफन बुक पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज कम इन द MCQs or exams also. I was about to say experiments. All right, so this was related to the rouge test. So rouge is a French word और फ्रेंच में rouge का मतलब होता है red. Okay, फ्रेंच में rouge का मतलब होता है red, right? सो इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज डन वाज कि आपने एक चाइल्ड को लेके आए. ओके, उस चाइल्ड के नोज पे आपने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दी. कूल, चाइल्ड को लेके आए, उसके नोज पे थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दी एंड देन यू मेक द चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड सी देयर फेस. ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जब वो चाइल्ड अपना फेस देखेगा तो विल द चाइल्ड वांट टू टच देयर ओन नोज एंड वांट टू वाइप ऑफ दैट लिपस्टिक और विल द चाइल्ड टच द मिरर इंस्टेड. सो ये फाइंड आउट किया गया था कि जो इनिशियल एजेस होती है, यानी कि ages between before 15 months. Okay, you can consider the initial ages, that is before 15 months of age. जो चाइल्ड है वो सोचता है कि सामने शीशे में या मिरर में जो इंसान दिख रहा है वो कोई और है, एंड द चाइल्ड ट्राइज टू टच द मिरर in an attempt to remove that lipstick mark from somebody else's nose. इनफैक्ट तो वो वही खुद है जो अपने आप को शीशे में देख रहा है ना, बट 15 मंथ से पहले की एज के जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि शीशे में कोई और दिख रहा है एंड दे ट्राई टू टच द मिरर इन एन अटेम्प्ट टू रिमूव द लिपस्टिक फ्रॉम समवन एल्सेज नोज. ओके, सो दिस इज what happens initial ages में. But when the child comes in the age of 15 to 18 months, then they touch their own nose. ठीक है, उस वक्त अगर उनके नोज पे लिपस्टिक लगाई जाए और फिर उनके सामने एक मिरर रख दिया जाए, so they will touch their own nose and they will try to remove and wipe off that lipstick. Cool? So इसी को हम बोलते हैं रूज टेस्ट, जो कि ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो होता है उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी उसके साथ ही डेवलप हो रहा होता है. Do you all remember yesterday we talked about 3 important terms: self esteem, self concept and self efficacy. तो उसमें हमने self concept में पढ़ा था ना कि image that you have of yourself. सो सेल्फ कॉन्सेप्ट में काफी सारी चीजें इंक्लूडेड होती है. आपका जेंडर आपके अकॉर्डिंग क्या है, आपकी अपीयरेंस कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, all of these things are included within this tenet of self concept. So Rouge test is actually demonstrating that as the age is increasing, the self concept is also developing.
ठीक है, तो आज के वीडियो में हमें यही 2 एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करने थे, रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट कंफर्ट एंड रिलेटेड टू रूज टेस्ट. आई होप you guys have learned something new from today's video and worked and moved towards your goal a little ahead. If yes, then do subscribe to this channel of Mind Review. Click the bell icon so that you can get a notification as soon as a new video is released, and you can get your motivation to begin studying. And also share the video with your psychology mates. Like it if you like it, okay? And comment down below कि कैसी चल रही है सिसरेली सीरीज आप लोगों के लिए, कितना कंसिस्टेंट आप लोग रह पा रहे हैं. एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक देन आई एम ऑलवेज ओपन टू दैट. So till then, keep studying, take rest, enjoy your days, and enjoy psychology. We'll meet tomorrow with another video continuing this chapter and discussing some important stages of Eric Erikson. चलिए मिलते हैं कल. Have a good day and bye bye.